Today we are going to study oceanography. This is an active recall session of oceanography. Let's start. So in oceanography, what do we have to study first is, first of all you should remember from ocean, water. So water की distribution है OIGF. So sorry for this. O से है तुम्हारा oceans, I से है ice caps and glaciers, G से है ground water, F से है fresh water और इसके नीचे आएगा तुम्हारा lakes. Ocean has approximately 97% of water. Ice caps have 2%. It has 0.68. It has 0.09%, and then lakes. So this is the distribution of water. Now we will talk about various portions of the oceans, various regions of the ocean. So okay, let's see. This is continental shelf. This is continental slope. This is abyssal plain. This is seamount. This is guyot. This is trench, and this is mid-oceanic ridge. ठीक है. So let's this is continental shelf. This is slope. This is seamount. This is guyot. This is trenches. This is trench, and this is mid-oceanic ridge. So continental shelf is something which has rich. This is rich in tourism, hydrocarbons, etc. will be found in here. Slope, it has steep gradient और यहाँ पे आके ये सारा जम जाता है. सारे जो भी sediments आएंगे, it will be settled down here. This is abyssal plain. Abyssal plain और normal plain you can say. Mountain plain को बोलते हैं abyssal plain. और abyssal plain में हमें क्या लिखा है? PMN nodules. आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो सबमरीन्स हैं वो PMN nodules को फाइंड करने के लिए जा रही हैं और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है. और सी माउंट, सी के अंदर जो माउंटेन है उसको बोलेंगे हम सी माउंट. दिस इज ग्योट. व्हाट इज दिस? दिस इज eroded part. This is eroded mountain is called gyot. This is trench. So like in Pacific Ocean we have Mariana Trench. बस एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है. What is trench? Trench is the deepest part of the ocean. What is trench? Deepest part of ocean is called trench. Mid-oceanic ridge. Mid-oceanic ridge से आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए. Mid-oceanic ridge occur on the divergent plate boundaries and this trench is occurred on the convergent plate boundaries. और divergent plate boundaries पे है और mid-oceanic ridge पे तुम्हारे shallow earthquake आ रहा है. ठीक है, तो this is it. And next we will study about, okay, so there is some concepts of isthmus, peninsula, Gibraltar Strait. So let's talk about that. So suppose this is North America, this is North America and this is South America. इसके अंदर जो isthmus होगा, a narrow strip of land connecting two large land masses. This is isthmus. This is Panama Isthmus. So what is isthmus? Narrow strip of land connecting two large land masses. Narrow strip of land connecting two large land masses. और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इस isthmus के ऑपोजिट जाएगा स्ट्रेट. Suppose this is North America. No, North America. Suppose this is Atlantic Ocean. Suppose this is Atlantic Ocean. Suppose this is Atlantic Ocean and this is Mediterranean Ocean. तो इसके बीच में जो है ये, इसके बीच में जो यहाँ पे आएगी, this is Strait of Gibraltar. This is strait. A narrow strip of water. What is strait? Narrow strip of water connecting two big water bodies. तो ये कौन सी है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार. जिब्राल्टार, ठीक है. और पेनिनसुला तो हमें पता है, ये पेनिनसुला एक ऐसा पार्ट ऑफ लैंड है जो तीनों साइड से वाटर से घिरा हुआ है. ऐसा लैंड which is connected to water from three sides. So these are some basic concepts which we must know. And now we will talk about what are the properties. We will talk about water properties.
वाटर प्रॉपर्टी सबसे पहले आ जाएगी तुम्हारी टेम्परेचर। तो हमें ये पता है कि टेम्परेचर, सपोज दिस इज द ओशियन। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे कुछ वाटर का टेम्परेचर होगा, यहाँ पे सन है, यहाँ पे कुछ वाटर का टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो हमें ये पता है कि टेम्परेचर को कौन अफेक्ट कर रहा है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन अफेक्ट करेगी, और दूसरी चीज़ कौन करेगी, ओशन का करंट अफेक्ट करेगा। कैसे, जो करंट्स हैं वो वाटर को यहाँ से यहाँ दूसरी जगह लेके जाएंगे, तो ओशन करंट्स हैं वो अफेक्ट करेंगे। और तीसरी चीज़ जो अफेक्ट करेगी, कॉन्टिनेंटैलिटी। Continentality, I'll tell you what happens. So always remember, land has extreming effect. Land has extreming effect. ठीक है. So we all know कि suppose this is the land, this is India, और यहाँ पे जो है वो this is your Bay of Bengal and this is your Arabian Sea. तो हमें ये पता है कि Bay of Bengal में more cyclones आ रहे हैं. क्यों? उसका रीज़न ये है कि cyclones को क्या चाहिए? cyclones को टेम्परेचर चाहिए greater than 27 डिग्री सेल्सियस, राइट. तो लैंड इज एक्सट्रीमली इफेक्ट मीन्स यहाँ पे ये ज़्यादा लैंड से गिरा हुआ है, यहाँ पे और कंट्रीज में साउथ ईस्ट एशिया रहेगा, तो लैंड से ज़्यादा गिरा है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा तुम्हारा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है इस साइड। और लैंड की वजह से जो है वो लैंड क्या होती है, फास्ट हीट फास्ट कूल, तो इसलिए लैंड का एक्सट्रीमली इफेक्ट रहता है हमारे पास। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डेप्थ। टेम्परेचर का डेप्थ से क्या लेना देना है, ये हमें समझ आ रहा है कि जब ऊपर सोलर रेडिएशन आ रही हैं तो यहाँ का पानी जो है वो गर्म होगा, यहाँ का पानी कोल्ड होगा, तो डेप्थ पे भी डिपेंड कर रहा है, वो डेप्थ पे भी टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है। अगर डीप है तो कोल्ड वाटर है, सरफेस का वार्मर होगा, मेक सेंस, सरफेस का वार्मर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सैलिनिटी। व्हाट इज सैलिनिटी? सैलिनिटी होता है डिसॉल्व सॉल्ट्स इन ओशन वाटर। कितना डिसॉल्व सॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो एवरेज सैलिनिटी होती है तुम्हारी, एवरेज सैलिनिटी इज 34.7 ppt, पार्ट्स पर, आई थिंक पार्ट्स पर मिलियन इज ppt। और अगर अगर तुम्हारा 24.7 ppt है तो वो बन जाएगा तुम्हारा ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर समझ गए ना, खारा पानी, विच इज अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। जो ड्रिंकिंग के लिए अनसुटेबल है उसको हम बोलेंगे ब्रैकिश वाटर। तो सैलिनिटी को कौन सैलिनिटी किस किस चीज़ से अफेक्ट होगी, सैलिनिटी सबसे आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ तुम, सैलिनिटी समझ गए ना आप लोग, डिसॉल्व सॉल्ट्स है, और ये 34.7 ppt होता है ऑन एवरेज। अगर 24.7 है तो वो ब्रैकिश वाटर है विच इज़ अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। सैलिनिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, सैलिनिटी डिपेंड करिए अगर तुम्हारा इवेपोरेशन है, कहीं पे इवेपोरेशन है, पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा तो नमक बच रहा है तो वहाँ पे सैलिनिटी हाई होगी। कहीं पे फ्रेश वाटर इनफ्लो है, जैसे लेक्स हो गई या कुछ हो गया, तो वहाँ पे सैलिनिटी कम होगी क्योंकि पानी आता जाता रहा है, एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो रहा, तो सैलिनिटी हमारी लो हो जाएगी, ठीक है। प्रेसिपिटेशन हो गई, कहीं पे बारिश है तो बारिश की वजह से भी सैलिनिटी तुम्हारी लो रहेगी। और कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज में फ्रेश वाटर इनटेक होता रहता है तो सैलिनिटी तुम्हारी लो होती रहेगी। और इसमें दो चीज़ आती है, मेल्टिंग थॉइंग, एक आ रही है, एक चीज़ तुम्हारी याद रखना है, मेल्टिंग इसी को बोलते हैं थॉइंग, और एक और ये तुम्हारी फ्रीजिंग। मेल्टिंग और थॉइंग का क्या मतलब है, जहाँ पे पानी मेल्ट हो रहा है, अगर आइस आइस ग्लेशियर्स हैं, ये आइस है, ये पानी मेल्ट हो गया, पानी मेल्ट हो गया तो क्या बचे नीचे, पानी मेल्ट हो गया, तो उसके बाद क्या हो रहा है, जमा नहीं है, अगर जमा नहीं है और अगर पानी मेल्ट हो रहा है तो तुम्हारी सैलिनिटी भी लो हो रही है। एक तरह से इसको ऐसे समझ लो कि फ्रेश वाटर की आ गई ना, जब तुम्हारी मेल्ट हो गया तो सैलिनिटी तुम्हारी लो रहेगी। फ्रीज हो जा रहा है पानी, ये एक पानी था एक कंटेनर में, इसको जब आपने फ्रीज कर दिया तो ये ऐसा बन गया, पानी फ्रीज हो गया, बचा क्या नीचे, नमक, तो सैलिनिटी विल बी हाई। बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और बस, और हमें एक चीज़ और भी याद रखनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें समझ आ गया कि एवरेज सरफेस टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, और ऐसे, और एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होता है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होता है, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होता है। व्हाट इज दिस, आई विल टेल यू नाउ। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का क्या मतलब है, एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो हमारा, मतलब वाटर हॉरिजेंटली कैसे वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, वर्टिकल का मतलब ये होता है, ऐसे सपोज मान लो दिस इज अ लेयर, हमें ये पता है कि
Okay, let me clean this and I'll tell you properly. Suppose this is like this, और ये तुम्हारी लेयर है 0 से 200 एंड दिस इज 500. ठीक है, एवरेज हमने बताया 26.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज है. 200 तक ये सेम रहेगा एवरेज. पानी जो है वो 200 तक ज़्यादा चेंज नहीं हो, वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा टेम्परेचर. फिर उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से वाटर विल शार्पली डिक्लाइन. एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से शार्पली डिक्लाइन हो जाएगा. कितना बन जाएगा ये? 2 से 4 डिग्री सेल्सियस आएगा. इस लाइन को क्या बोलते हैं? थर्मोक्लाइन. एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे वाटर का टेम्परेचर जो है एकदम से डिक्लाइन कर जाएगा और टेम्परेचर हो जाएगा, देख लो कहाँ पे 26 है, कहाँ पे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस. तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? थर्मोक्लाइन. ठीक है. और एक चीज़ इन प्रॉपर्टीज में हमारी तीसरी प्रॉपर्टी रहेगी थी. थर्ड प्रॉपर्टी वुड बी डेंसिटी. डेंसिटी आपको ऐसे समझ आ रहा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी भी अफेक्ट करिए. डेंसिटी क्या होगा हमें ये पता है कि अगर ये एक कंटेनर है पानी का, तो नीचे पानी के ऊपर मास पर यूनिट वॉल्यूम, ज़्यादा मास है नीचे, तो डेप्थ पे तुम्हारी डेंसिटी हाई रहेगी. ठीक है. और दूसरी चीज़, डेंसिटी बढ़ेगी, डेप्थ पे तुम्हारी डेंसिटी हाई है. जितना ज़्यादा डेंस होगा, और हमें ये भी पता है कि कोल्ड एयर इज मोर डेंस. तो मतलब है कि अगर तुम्हारा टेम्परेचर कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है. ठीक है. और अगर जितना ज़्यादा कोई सैलाइन होगा वो उतना डेंस होगा. सैलिनिटी के साथ भी, सैलिनिटी को तुम ऐसे समझ लो ना जैसे नमक है. जितना ज़्यादा तुम्हारा सैलिन है, नमक है पानी में, तो पानी और उसका वेट बढ़ रहा है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइड्स. ये हमारा खत्म हो गया. ओशन तो हमने भी क्या क्या पढ़ा है? हमने सबसे पहले पढ़ा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन. उसके ऊपर हमने पढ़ा डिफरेंट रीजन्स हमने पढ़े. उसके बाद हमने पढ़ा, हमने 3 चीज़ें समझी: इस्थमस, स्ट्रेट एंड पेनिनसुला. उसके बाद हमने वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी: टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी. नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइड्स. टाइड्स के तुम्हारा व्हाट इज राइट? राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर. सी वाटर के राइज एंड फॉल को हम बोलते हैं टाइड्स. और टाइड्स का रीज़न क्या है? 2 रीज़न है. ग्रेविटेशनल पुल, किस किस का? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ. ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ. अर्थ की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ. ये होता है टाइड. और टाइड हमारी जनरली कितनी आ रही है? टाइड हमारी आ रही है सेमी डायurnal. मतलब एक दिन में 2 हाई प्लस 2 लो टाइड्स आएंगी. सेमी डायurnal मतलब एक दिन में 2 हाई प्लस 2 लो टाइड्स आएंगी. टाइड्स हो गया. टाइड्स के कितने टाइप हैं? सबसे पहले 2 तरह की टाइड्स हैं. नंबर 1, एक होगी तुम्हारी स्प्रिंग टाइड. स्प्रिंग टाइड का क्या मतलब है? स्प्रिंग से याद रखना, स्प्रिंग मतलब एस मतलब स्ट्रेट. जब तुम्हारी अर्थ, सन एंड मून जो है वो स्ट्रेट लाइन में होगा, तब उस टाइम पे जो टाइड्स आएंगी वो आएंगी तुम्हारी स्प्रिंग टाइड्स. और उसके बाद आती है तुम्हारी दूसरी नीप टाइड्स. नीप, आई टेल यू हाउ टू रिमेंबर दिस. 1 सेकेंड. दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है वो है तुम्हारी नीप टाइड्स. नीप एन मतलब 90 डिग्री. तो जब अर्थ, सन और मून जो है वो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो उस टाइम पे जो टाइड्स आएंगी वो आएंगी तुम्हारी नीप टाइड्स. ओके, दिस इज इजी. और सुनामी क्या होता है? ओके, और एक चीज़ टाइड्स के साथ हम एक चीज़ और कर लेते हैं, सुनामी. व्हाट इज सुनामी? सुनामी हमने देखा है कि सीस्मिक एक्टिविटी बिलो वाटर. अगर ये तुम्हारा ओशन है, सपोज कर लो ये तुम्हारा ओशन है, यहाँ पे अगर नीचे सीस्मिक एक्टिविटीज होंगी ना तो बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स आएंगे. इसको बोलते हैं सुनामी. तो व्हाट इज सुनामी? सीस्मिक एक्टिविटीज बिलो वाटर. तुम्हारी सीस्मिक एक्टिविटी हो रही है बिलो वाटर, उसको बोलेंगे हम टाइड. और वेरी वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, हाई स्पीड, इनके फीचर्स क्या है? लॉन्ग वेवलेंथ. वेवलेंथ समझिए ना, ये इसको बोलते हैं वेवलेंथ. लॉन्ग, दिस इज वेवलेंथ. लॉन्ग वेवलेंथ, हाई स्पीड. बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे आएंगी. क्यों? रीज़न मैंने आपको बता दिया. यहाँ पे नीचे सीस्मिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसकी वजह से हाई वेवलेंथ और
लॉन्ग वेवलेंथ एंड हाई स्पीड की टाइड्स आएंगी, उसको हम बोल देंगे सुनामी। ठीक है, अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आ गया तुम्हारा क्रायोस्फेयर। क्रायोस्फेयर क्या होता है? अर्थ में जितनी भी आइस है हर फॉर्म में, उसको बोलते हैं क्रायोस्फेयर। क्रायोस्फेयर मतलब आइस फॉर्म इन अर्थ। अर्थ में जितनी भी टाइप की आइस फाउंड हो रही है, जिस भी फॉर्म में फाइंड हो रही है, उस पोर्शन को बोल देंगे क्रायोस्फेयर। और एक साथ ही में इसके आता है परमाफ्रॉस्ट। व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट? परमाफ्रॉस्ट इज जब तुम्हारे कोई एरिया है वो फ्रीज रह रहा है फॉर ग्रेटर देन 2 years। व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट? ऐसा एरिया जो फ्रीज रह रहा है फॉर 2 years। सपोज ये एक पूरी लैंड है, उसमें ये वाला एरिया है वो 2 साल से ज़्यादा जो है वो फ्रीज रह रहा है, तो वो चीज़ बन जाएगी परमाफ्रॉस्ट। अब इसी में हम एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर कर लेते हैं, सिंपल सा टॉपिक है उसको कर लेते हैं, और ये पीसी का काफ़ी फेवरेट भी है, दैट इज कोरल्स। व्हाट इज कोरल्स? कोरल्स कुछ नहीं, कोरल्स एक पॉलिप्स हैं। कोरल्स इज पॉलिप्स हैं एक, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, विच आर इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गी। एक एल्गी है जिसका नाम है ज़ूज़ेंथले। कोरल्स क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि तू भी हमें कुछ देगा, ये दो लोग हैं, अगर ये दोनों कब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ए और बी, जब ए से बी को कुछ मिल रहा है, बी से ए को कुछ मिल रहा है, तो एक तरफ ये पॉलिप्स हैं और एक तरफ ये एल्गे हैं, दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। एल्गे क्या दे रही है? एल्गे इसको कलर दे रही है, पॉलिप्स क्या दे रहे हैं? इसको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। ठीक है, ज़ूज़ेंथले इसको कलर दे रही है और ये न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, और ये इसको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं? इसको स्पेस भी दे रहे हैं रहने के लिए, एल्गे को रहने के लिए जगह दे रहे हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स भी दे रहे हैं, और ये कलर दे रही है एल्गे। तो ये हो गया तुम्हारा कोरल पॉलिप। और अब कोरल्स के लिए कंडीशंस क्या है? कोरल्स के लिए 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहले इनको कैसे चाहिए? इनको टेम्परेचर चाहिए ग्रेटर देन 35 डिग्री सेल्सियस। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि कोरल्स कहाँ पाए जाएंगे? दिस इज वाटर, ऊपर वाली सरफेस पे जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है उस जगह पे तुम्हारे कोरल्स पाए जाएंगे, मतलब ऊपर होने चाहिए। और इनको कैसे चाहिए? शैलो चाहिए, शैलो वाटर में होंगे ये। शैलो वाटर का क्या मतलब है? ऊपर ही मिले जाएंगे जहाँ पे सनलाइट भी हो और पानी ऊपर। यहाँ पे क्या, यहाँ पे डीप वाटर है तो यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे, शैलो वाटर में पाए जाएंगे। और इनको सैलिनिटी भी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए बट हाँ कुछ चाहिए। इनको सैलिनिटी चाहिए 27 से 40 ppt की। तो इनको क्या क्या कंडीशंस चाहिए? सबसे पहले इनको टेम्परेचर चाहिए ग्रेटर देन 35 डिग्री सेल्सियस, शैलो वाटर चाहिए मतलब ऊपर ही मिलेंगे, और इनको सैलिनिटी चाहिए 27 से 40 ppt। और ये बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है तो इनको चाहिए क्लियर वाटर, और इनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, लो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और लो वेव मूवमेंट चाहिए, इनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, और पानी साफ चाहिए, थोड़े साफ सुथरे वाले वो है। अब इसी के साथ कोरल के साथ एक आता है, एक टर्म आती है कोरल ब्लीचिंग। व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग? देखिए, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? जब ये कोरल है और ये एल्गे हैं, ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? जब ये जो कोरल है ये एक्सपेल कर देती है इसको, एल्गे को एक्सपेल कर रही है, एल्गे को, कोरल्स एक्सपेल कर दे रहे हैं एल्गे को। तब जो कोरल एल्गे क्या दे रहे थे? इनको कलर दे रहे थे, तो उसकी वजह से कोरल्स कैसे दिख रहे हैं? ये वाइट दिख रहे हैं। क्यों? जैसे कुछ भी मान लो अगर इन्वायरमेंट में थोड़ी डस्ट है या कुछ भी है, पॉल्यूशन है, तो ये कोरल ब्लीचिंग का फिनोमेना शुरू हो जाता है और इसको एक्सपेल करके दे देगी। अब ये जो है कोरल ब्लीचिंग, ये परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो वापस उसको अपने घर में भी बुला सकती है और दोनों साथ में रह सकती हैं। तो ये आती थी कोरल ब्लीचिंग। बस कोरल जो है वो कलर उसका चला जाता है तो वो वाइट शो होती है, इसलिए उसको कोरल ब्लीचिंग बोल देते हैं। और अब आ जाओ आप, अब हम आगे करेंगे। कोरल ब्लीचिंग के साथ हमें एक इसी के 3 टाइप हैं, मतलब ये रीफ है, रीफ होती है जहाँ पे कोरल्स पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं रीफ। तो वो 3 तरह के हैं। एक हो गया तुम्हारा, दिस इज फ्रिंजिंग रीफ, दिस इज जब ये नीचे 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 सबसाइड कर रहा है, दिस इज बैरियर रीफ, और जब ये पूरा ही सबसाइड कर जाएगा तो अटॉल रीफ। दिस इज फ्रिंजिंग रीफ, दिस इज व्हाट? रीफ क्या है? जहाँ पे कोरल्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं रीफ। दिस इज फ्रिंजिंग रीफ, दिस इज बैरियर रीफ, दिस इज एटॉल।
अभी आपने बैरी रीफ का नाम कहाँ सुना होगा? मैं आपको बताती हूँ, बैरी रीफ का नाम आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में. सपोज वेट, लेट मी शो यू हेयर. ओके, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, सिंपली जैसे ड्रॉ कर लेंगे. ऑस्ट्रेलिया की इस वाली साइड, ईस्ट वाली साइड पे आपको बैरियर रीफ देखने को मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे क्या है, तुम्हारे कोरल्स पाए जाते हैं ईस्ट वाली साइड. क्यों? ईस्ट वाली साइड, वेस्ट वाली साइड क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस और यहाँ पे कोल्ड वेव्स आती हैं. और इनको क्या चाहिए, कोरल्स को क्या चाहिए? टेम्परेचर ग्रेटर देन 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए. अप्रॉक्सीमेटली 35-37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए. दिस इज फ्रिंजिंग रीफ, दिस इज एटॉल. और इंडिया में एटॉल इंडिया में है. इंडिया में कहाँ कहाँ पे है हमारे पास? गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड. यहाँ पे हमारे क्या मिल रहे हैं? कोरल्स मिल रहे हैं इंडिया में इन जगहों पे. मेक सेंस? मेक सेंस. ठीक है, अब हम एक चीज, लास्ट चीज कर लेते हैं, डेड जोन्स. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड डेड जोन. डेड जोन क्या होता है? एक ऐसा ओशन का एक ऐसा वाला पार्ट है, नीचे वाला, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल इज वेरी 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 लो. इतना लो है कि जो मरीन लाइफ है कैन नॉट सर्वाइव. मरीन लाइफ नहीं सर्वाइव कर सकती. रीज़न क्या है? न्यूट्रिशन, पॉल्यूशन है, यूट्रोफिकेशन है, या फिर एल्गल ब्लूम्स है, कुछ भी रीज़न हो सकता है. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तुम्हारा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है. नाइट्रोजन फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा है और इसको डेड जोन बोलते हैं. डेड जोन को क्या बोलते हैं? हाइपॉक्सिक जोन भी बोलते हैं. डेड जोन को और हम क्या बोल रहे हैं? डेड जोन को हम हाइपॉक्सिक जोन्स भी बोल रहे हैं. So yeah, this was all about oceanography. In next chapter we will study about other other parts of geography. So see you till then. Bye bye.